Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मीठे नाम पर हम स्वागत करते हैं। Welcome to the short sermon from Ebenezer Ministries. और आप सभी को एक छोटी सी पंक्ति, एक छोटे से कड़वे की इस परमेश्वर के वचन में आपको स्वागत करते हैं। Let me invite your attention to Acts chapter 1 verse 8. और आइए हम अपनी आज के छोटे से मनन के लिए हम खोलेंगे प्रेरितों के काम उसकी 1 के 8वां वचन। But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाही होगा। You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. और आप जो हैं जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। So when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. Then you cannot sit quietly. You shall be a witness to Jesus in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. और जब आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मा आएगा तब आप चुपचाप बैठ नहीं सकते। तब आप परमेश्वर की गवाही जुडाया, यरूशलेम और पूरे दुनिया की छोर तक आप करेंगे। आप परमेश्वर की गवाही देंगे। The question is, have you received the Holy Spirit? लेकिन एक सवाल है यहाँ पर, क्या आपने परमेश्वर की आत्मा को पाया है? Before Jesus ascended into heaven, he told us that he is sending a comforter who will be with us always, the Holy Spirit. और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से धरती से उठाए जाने के पहले उन्होंने कहा था कि मैं आपके लिए एक सहायक भेजूंगा। Yes, when the disciples were gathered in one location on the day of Pentecost, the Holy Spirit filled them all. और जब परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चेले वहां पर सब इकट्ठे थे तब परमेश्वर की आत्मा सब लोगों को भर दिए। Yes, they began to speak in unknown languages. People felt that they were even drunk. That was the kind of things that happened on that day. और जब परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर आया, लोग विभिन्न भाषाओं में बात करने लगे और वहां पर उपस्थित लोगों को ऐसा लगा कि ये लोग पिए हुए हैं, मदिरा पिए हुए हैं। The Holy Spirit will empower you in whatever things you do for God. और परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आपको जो कुछ भी करेंगे उसमें सामर्थ्य प्रदान करेगा। Yes, my dear friend, when God has sent His Holy Spirit to be with you, you will definitely receive power and you shall witness about Jesus Christ. और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजे हैं और हम जो है उसकी गवाही करेंगे। When you receive the Holy Spirit, you will also receive the gifts of the Holy Spirit and the fruits of the Holy Spirit. और अब जब आप परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करेंगे, आप परमेश्वर के फल को पाएंगे और परमेश्वर को आशीष भी। In 1 Corinthians chapter 12, let me invite your attention. There you can see about the spiritual gifts. और हम देखेंगे कि पहला कुरिन्थियों की 1 Corinthians chapter 12. और हम देखेंगे कि पहला कुरिन्थियों के 12वां अध्याय में Yes. Verse 1. Now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। Verse 2. You know that you were Gentiles carried away to these dumb idols, however you were led. और दूसरे वचन में तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातियों थे तो मूंगे मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। Verse 3. Therefore I make known to you that no one speaking by the Spirit of God calls Jesus accursed, and no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की
अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु समर्पित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना वो कह सकता है प्रभु यीशु प्रभु है। Look at this. We were all living different lives. We were after several things, but one day we all had an encounter that changed our life. We accepted Jesus Christ as a Lord and Savior. और हम सब लोग अपने तरह की जीवन जीते थे, हम हमारे तरीके से हमारा जीवन शैली को बिताते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हम परमेश्वर की आत्मा के साथ हम मिले। No one can say that Jesus is the Lord except by the Holy Spirit. और कोई भी अपने मन में स्वीकार कर ही नहीं सकता जब तक पवित्र आत्मा की उसके जीवन में विश्वास, उसके जीवन में अधिकार ना हो। Yes, the question is, have you received the Holy Spirit? If not, this is the time to pray to God and receive the Holy Spirit. क्या आप परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो अभी समय है हमको प्रार्थना करके उस पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में लाना है। Now let's look at the gifts of the Holy Spirit from verse 4. और हम देखेंगे चौथे अध्याय के आगे। Yes, 1 Corinthians chapter 12, verse 4 onwards, we see that there are diversities of gifts, but the same Spirit. और हम देखेंगे कि वरदान तो कई प्रकार हैं, परंतु आत्मा एक ही है। Verse 5, there are differences of ministries, but the same Lord. और सेवा भी कई प्रकार के हैं, परंतु प्रभु एक है। Verse 6, and there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. Verse 6, I'm reading verse 6, and there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। In verse 7, we read like this, but the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. So, what the Holy Spirit is given to us so that it can benefit others. किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें की दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। From verse 8, when we read till verse 11, we understand the different gifts of the Holy Spirit. और हम 8वें वचन से लेकर 11 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमको पता चलता है कि पवित्र आत्मा की वरदान क्या-क्या है। So, the first one, in verse 8, for to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit. और 8वें वचन में लिखा है, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरों को उसकी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। So the first one is word of wisdom, the second one is the word of knowledge. और हम देखेंगे कि जो पहला है वो बुद्धि की बातें। Yes, and the second one is the word of knowledge. और हम देखेंगे कि दूसरा जो है वो ज्ञान की बातें। Yes, from verse 9 let's read. To another faith by the same Spirit, to another gifts of hope, gifts of healing by the same Spirit. So the third one is gift of faith and the fourth one is the gift of healing. और हम देखेंगे 9वें अध्याय में किसी को उसी आत्मा के विश्वास और किसी के उसी एक आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान दिया गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आत्मा के द्वारा विश्वास और आत्मा के द्वारा चंगाई की वरदान। Yes, verse number 10 we read like this. To another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. और हम देखेंगे 10वां वचन में ऐसा लिखा है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी का भाषाओं का अर्थ बनाना। Verse 11, but one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as he
wills. परंतु यह सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। My dear friends, now we just learned about the gifts of the Holy Spirit. मेरे प्यारे मित्रों, अभी ही हम इस परमेश्वर के वचन से जो पवित्र आत्मा की वरदान है उसके बारे में हमने पढ़ा। Shall we repeat? So, the first gift, what is it? It is the word of wisdom. The second one, the word of knowledge. और हम एक बार और देख लेते हैं, जो पहली गिफ्ट जो है बुद्धि की बातें और दूसरी जो है वो है ज्ञान की बातें। Yes, what is the third and the fourth? That is the gift of faith, then the gift of healing. और हम देखेंगे तीसरा और चौथा जो है आत्मा से विश्वास और जो चौथा है चंगा करने का वरदान। The fifth, the gift of miracles. Sixth, the gift of prophecy. और देखेंगे कि सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और दूसरा जो है भविष्यवाणी। Yes, seventh one, what is it? It is the gift of discerning of spirits. और हम देखेंगे सातवां जो वरदान है वो आत्माओं की परख करने की वरदान। Yes, then we see the gift of different kinds of tongues, and the last one, the interpretation of tongues. और हम देखेंगे विभिन्न भाषाएं बोलने की वरदान और जो लास्ट वरदान है वो है कि उसी विभिन्न भाषाओं को अनुवाद करने की वरदान। Now you just understood what are the gifts of the Holy Spirit, then you also understand that it is freely given to you. और अभी हमने सुना कि ये सारी जो है पवित्र आत्मा की वरदान है और ये आप सभी को मुफ्त में दिया गया है। Now this is the time that you should ask God to fill you with the Holy Spirit, and so that you will receive the gifts of the Holy Spirit for the benefit of others. और मेरे प्यारों, अभी समय है कि आप परमेश्वर को अपने ऊपर उसकी आत्मा मांगे और उसके वरदान को ले और परमेश्वर के महिमा के लिए उसको व्यवहार करें। When you are full of the Holy Spirit, yes, you will receive power. Then you will be a witness to Jesus Christ. और जब आप परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करेंगे, आपके हर कमियों में आप सामर्थ को महसूस करेंगे। Yes, you will be able to proclaim the gospel, and when you proclaim the gospel, Jesus, he will manifest through you, my dear friends. और आप जब परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, उसके नाम की घोषणा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अधिकार लेंगे। Yes, when you pray, signs, wonders, and miracles will follow you. Healings will happen in the name of Jesus Christ. और हाँ, जब आप प्रार्थना करेंगे तब चंगाई होगी लोगों की और बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को आप अभी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कर पाएंगे। When you operate in the gifts of the Holy Spirit, one word of wisdom or a word of knowledge can touch the people that you're ministering to. और अगर आपके अंदर परमेश्वर वो ज्ञान की आत्मा, वचन की आत्मा देते हैं, बुद्धि देते हैं, तो आप उनकी महिमा और अपने लोगों को आप जो है उस ज्ञान के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। Faith is a gift of the Holy Spirit. You need that uncommon faith to do mighty miracles in Jesus' mighty name. और ये जो वरदान है, ये आपको परमेश्वर की ओर से उसके आत्मा में मिलेगा और आप उस महिमा लेंगे। All around you, you can see so many people who are sick. They are struggling because of illnesses. If you have the gifts of healing which operate through you, you will be a source of comfort to these people. आमीन। और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर कई सारे लोग हैं जो बीमारियों से, कई तकलीफ, पीड़ा से गुजर रहे हैं। अगर आपके पास उस परमेश्वर की ओर से उस चंगा करने का वरदान है, तो आप कई सारे लोगों के चेहरे पर एक खुशी ला पाएंगे। आप कई सारे लोगों के उनके ऊपर एक उम्मीद भर पाएंगे। When you look around, you see so many people in bondage. They are going through different problems, but you might not know the reason. But if you have the discerning of spirits, you will be able to find out unclean spirits and cast them out in the name of Jesus. और आपके अंदर अगर आत्मा परखने की वरदान है, तो कई सारे लोग हैं जो ऐसे आत्मिक डेमोनिक फोर्सेस, ऐसे कई सारी चीजों से वो तरस रहे हैं और जकड़े हुए हैं, उन लोगों को आप छुड़ा सकते हैं। Are you ready to minister for
Jesus Christ. क्या आप तैयार है उस परमेश्वर के साथ, उस प्रभु यीशु मसीह के साथ अपनी सेवकाई को देने के लिए? Jesus wants to use you, my dear friend. He wants to use you. और मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आपको बड़े बड़े सामर्थ्य से आपको व्यवहार करना चाहते हैं। He wants to use your hands to lay hands on the sick so that they shall recover. और वो चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं कि आप लोगों के ऊपर अपना हाथ रखें ताकि वो चंगाई को ग्रहण करें। Jesus wants you to use your legs so that you can travel to the different nations and parts of the world so that you can proclaim the gospel for Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप अपने दोनों पांव से कई दूर मेलों जाकर आप उस परमेश्वर की नाम को बताएं सबको। Jesus wants to use your tongue to speak utterances on behalf of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आपके जुबान को वो यूज करें उनके जगह पर और अपनी नाम की महिमा करें। Jesus wants your time, your life, your health, everything that you have so that you can glorify the name of Jesus Christ. और प्रभु चाहते हैं आपका समय, आपका शरीर, आपका मन, आपका टैलेंट, ताकि वो आपको अपनी महिमा के लिए वो व्यवहार करें। If you really introspect your life, if you check your life, you will understand how much time you have wasted. और अगर आप अपनी जीवन को निहारेंगे, आप अपनी जीवन को एक बार और फिर से देखेंगे कि आपने क्या किया है, तो तब आपको पता चलेगा कि आपने कैसे अपने जीवन को व्यर्थ किया है। You must have a purpose in your life. Are you ready to shine for Jesus Christ? आपके जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए जीने के लिए। क्या आप तैयार है प्रभु यीशु मसीह के लिए चमकने के लिए? Jesus wants people so that he can, yes, heal the sick. He can give sight to the blind. He can open the deaf ears. He can make the mute speak. All through you, my dear friend. और प्रभु यीशु मसीह आपके जरिए लोगों को चंगाई देना चाहते हैं, जो सुन नहीं सकते उनको सुनाना चाहते हैं। ऐसे कई आश्चर्य कर्मों को प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा करना चाहते हैं। There are people who are paralyzed and in the sick bed who need help. If you don't go and touch them and heal them with the power of the Holy Spirit, who will go? और वहां पर कई सारे लोग हैं जो पंगु बैठे हुए हैं, वो अपने बेड पे हैं। अगर आप नहीं जाकर उनको प्रार्थना करेंगे, उनको चंगाई नहीं करेंगे, तो कौन जाएगा? There are so many people in this world who still have not found the Savior Jesus Christ because you have kept quiet. Are you ready to open your mouth and teach them and preach them about Jesus Christ? और आज दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। क्या आप तैयार हैं उन सब लोगों के पास जाकर प्रभु यीशु मसीह की बात उनको कहने के लिए, उनकी शिक्षा देने के लिए? God has plans for you. It is not to harm you, but to prosper you. But are you ready to follow the instructions of the Holy Spirit? और परमेश्वर के पास एक बहुत ही उत्तम योजना है आपके भविष्य को बनाने के लिए, ना कि आपको बिगाड़ने के लिए। और क्या आप तैयार हैं उस परमेश्वर को अपने जीवन देने के लिए? Continue to speak in tongues. Continue to speak in unknown languages to your God. When you speak to God, you speak mysteries to God. और जब आप अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, आप अन्य भाषाओं बोलते हैं, तब आप परमेश्वर के साथ आप बात करते हैं और रहस्य की बातें होती है। When you begin to interpret dreams, when you begin to interpret your tongues, that itself becomes prophecy. और जब आप कोई अनुवाद करते हैं, कोई अन्य भाषाओं का अनुवाद करते हैं, परमेश्वर की ओर से सुनकर उसका अनुवाद करते हैं, तो वो जो है एक भाववाणी बन जाता है, वो एक प्रोफेसी हो जाता है। One word from God, it is revealed to you by or one word of wisdom or one word of knowledge can give peace to the life of one person. और जो है कि एक परमेश्वर का वचन, एक परमेश्वर का दिया हुआ रहस्य आपके मन में हो सकता है, वो किसी के भविष्य को बदल सकता है। Yes, Jesus wants to speak to you. He wants to speak through you. The question is, are you ready to spend time with Jesus Christ? हाँ, परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, परमेश्वर आपके जरिए बात करना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर को सुनने के लिए?
In a day of 24 hours, how much time are you giving to Jesus Christ? और एक दिन में जो 24 घंटे हैं उसमें से कितना समय है जो हम परमेश्वर को देते हैं? Are you reading the Bible? Are you praying to God? If not, let this be the day that you decide to spend more time in prayer. क्या आप उस परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं? क्या एक दिन में आप परमेश्वर के वो प्रार्थना कर रहे हैं? अगर नहीं तो होने दीजिए कि आज का वो दिन हो जहां से आप परमेश्वर को बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में देंगे। When you read the Bible, God will empower you to teach the scriptures to people who do not know it. और जब परमेश्वर के वचन को आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके मन में एक उत्साह देंगे जिसकी वजह से आप लोगों तक उसके वचन को पहुंचाएंगे। Yes, now let us pray. और आइए हम प्रार्थना करते हैं। Our loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful time. हे प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। Lord, we come with a lot of problems on our life, Lord. Lord, we cast all our burdens to you, Lord. हे प्रभु, हम हमारे जीवन के सारे तकलीफों के साथ हम आपके समक्ष आते हैं प्रभु। उन तमाम चीजों को आपके कंधे पर डालते हैं पिता। Lord, we pray for these people. There are people who still haven't accepted Jesus Christ as the Lord and Savior. We pray that let them find Jesus. हे प्रभु, हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता जो लोग अभी तक आपको ग्रहण नहीं किए हैं। Lord, let them say that Jesus is Lord of their life, and Lord, fill them with the Holy Spirit. हे प्रभु, होने दीजिए कि वो अपने मुखों से स्वीकार करें कि आप ही परमेश्वर हैं और उनके जीवन में आप अधिकार लें। Lord, help these people to read the Bible and take to you more and grow in the Word of God. हे प्रभु, आप उनको मदद करिए प्रभु कि वो आपके वचन को पढ़े परमेश्वर, और पिता वो आप में बढ़े। Lord, fill them with the gifts of the Holy Spirit. हे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से आप उन्हें भरिए। Lord, we pray that, Lord, you will impart these people with the gift with different gifts as you please, Lord, as per your will. Fill them so that they can be used by you. हे प्रभु, जितने लोग भी देख रहे हैं प्रभु, सब लोगों को परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार एक एक वरदान दे प्रभु, ताकि वो उस वरदान के जरिए परमेश्वर वो सब लोगों को परमेश्वर तेरे लोगों को वो आशीष का कारण बने। Lord, we pray that you fill these people with the gift of word of wisdom, gift of word of knowledge. हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं बुद्धि की समझ से आप उनकी वरदान दीजिए, उनको ज्ञान की वरदान दीजिए प्रभु। Lord, we pray that you will fill these people with the gift of faith and the gifts of healing. हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन सब लोगों को विश्वास की आत्मा से भरिए परमेश्वर, वरदान से भरिए प्रभु, चंगाई की वरदान से भरिए प्रभु। Lord, we pray as these people get closer to you, Lord, fill them with the gift of working of miracles and the gift of prophecy. हे प्रभु, अब जब तेरे लोग तेरे पास आ रहे हैं प्रभु, तेरे समक्ष आ रहे हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको चंगाई करने की, उनको सामर्थ्य दे प्रभु, सामर्थ्य की आत्मा दे प्रभु, उनको भविष्यवाणी करने की सामर्थ्य दे परमेश्वर। Lord, we pray that you will empower these people with the gift of discerning of spirits and to speak different kinds of tongues and to interpret tongues. हे प्रभु, आप इन लोगों को परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर आत्मा परखने की बुद्धि दीजिए प्रभु, विभिन्न भाषाओं में बोलने की बुद्धि दीजिए परमेश्वर, और उस भाषाओं को आप उनको अनुवाद करने की भी ताकत दीजिए परमेश्वर, समझ दीजिए। Lord, we pray for these people. Lord, fill these people with the Holy Spirit so that they can be witnesses to you, Lord. हे प्रभु, आप इन सब लोगों को अपने पवित्र आत्मा से भरिए प्रभु, ताकि ये लोग दुनिया के अंत तक तेरी गवाही दे। Let them be witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the end of the earth. हे प्रभु, होने दे परमेश्वर ये लोग जुड़ेया, समरिया और इस दुनिया की छोर तक, अंत तक प्रभु तेरे नाम की गवाही दें। Let these people be witnesses to you in their homes, in their towns, in the cities, in the states, in their nations.
हे प्रभु होने दे प्रभु, ये उन जगह पर तेरे नाम की गवाही दे जहां रहते हैं प्रभु, जिस गांव में रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, जिस कंट्री में भी रहते हैं प्रभु। Take them to the ends of the earth as a witness for you, Lord. हे प्रभु दुनिया के अंत तक प्रभु उनको अपनी गवाही के लिए आप उनको यूज करें। When they preach the word of God, Lord, attest it with signs, wonders, and miracles, all for your name's sake. प्रभु अब जब वो प्रार्थना करें, जब वो तेरे वचन को दे परमेश्वर, आप उनके जरिए परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को करे प्रभु अपने नाम के निमित्त। We pray this prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. और हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम पर हम मांगते हैं। आमीन आमीन। Lord Jesus, I told them about the Holy Spirit, and I told them about the gifts of the Holy Spirit. Lord, fill them with your Holy Spirit. प्रभु यीशु हमने इनको तेरे आत्मा के बारे में बताया प्रभु, तेरे वरदानों के बारे में बताया प्रभु, उन लोगों को आपके वरदान दीजिए और उनको चंगा करिए। Lord, they were once sick, now let them become healers in Jesus' mighty name. प्रभु हो सकता है वो आज बीमार थे प्रभु, लेकिन आज वो चंगा करने वाले बने। Lord, let them testify about the goodness of the living God, Jesus Christ. हे प्रभु होने दे कि वो तेरी गवाही दे। We ask this prayer in Jesus' mighty name. Lord, I bless each one of them in Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. प्रभु ये प्रार्थना तेरे सामर्थी बेटे के नाम से मांगते हैं, अब सब लोगों को आशीष करिए। आमीन। Amen.